آپ کو جو افسانہ سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ننگی آوازیں۔ اس افسانے کو تحریر کیا ہے سعادت حسین منٹو نے۔ بھولو اور گاما دو بھائی تھے، بے حد محنتی۔ بھولو کلئی گرتا، صبح دونکنی سر پر رکھ کر نکلتا اور دن بھر شہر کی گلیوں میں بانڈے کلی کرالوں کی صدائیں لگاتا رہتا۔ شام کو گھر لوٹتا تو اس کی تہبند کی ڈب میں 3-4 روپے کا کریانہ ضرور ہوتا۔ گاما خوانچا فروش تھا، اس کو بھی دن بھر چاپڑی سر پر اٹھائے گھومنا پڑتا تھا۔ 3-4 روپے یہ بھی کما لیتا تھا، مگر اس کو شراب کی لت تھی۔ شام کو دینے کے بٹیار خانے سے کھانا کھانے سے پہلے 1 پاؤ شراب اسے ضرور چاہیے تھی۔ پینے کے بعد وہ خوب چہکتا، دینے کے بٹیار خانے میں رونق لگ جاتی۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ پیتا ہے اور اسی کے سہارے جیتا ہے۔ بھولو نے گاما کو، جو اس سے 2 سال بڑا تھا، بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ شراب کی لت بہت بری ہے، شادی شدہ ہو، بیکار پیسہ برباد کرتے ہو، یہی جو تم ہر روز 1 پاؤ شراب پر خرچ کرتے ہو بچا کر رکھو تو بابی ٹاٹ سے رہا کرے گی۔ ننگی بچی اچھی لگتی ہے تمہیں اپنی گھر والی۔ گاما نے اس کان سنا اس کان سے نکال دیا۔ بھولو جب تک ہار گیا تو اس نے کہنا سننا ہی چھوڑ دیا۔ دونوں مہاجر تھے، ایک بڑی بلڈنگ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر تھے، ان پر جہاں اوروں نے قبضہ جما رکھا تھا وہاں ان دونوں بھائیوں نے بھی ایک کوارٹر کو، جو کہ دوسری منزل پر تھا، اپنی رہائش کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ سردیاں آرام سے گزر گئیں، گرمیاں آئیں تو گاما کو بہت تکلیف ہوئی۔ بھولو تو اوپر کوٹے پر کاٹ بچھا کر سو جاتا تھا، گاما کیا کرتا؟ بیوی تھی اور اوپر پردے کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا۔ ایک گاما ہی کو یہ تکلیف نہیں تھی، کوارٹروں میں جو بھی شادی شدہ تھا اسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ کلن کو ایک بات سوچی، اس نے کوٹے پر کونے میں اپنی اور اپنی بیوی کی چارپائی کے ارد گرد ٹاٹ تان دیا۔ اس طرح پردے کا انتظام ہو گیا۔ کلن کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اسی ترکیب سے کام لیا۔ بھولو نے بائی کی مدد کی اور چند دنوں ہی میں بانس وغیرہ گاڑ کر ٹاٹ اور کمبل جوڑ کر پردے کا انتظام کر دیا۔ یوں ہوا تو رک جاتی تھی، مگر نیچے کوارٹروں کے دوزخ سے ہر حالت میں یہ جگہ بہتر تھی۔ اوپر کوٹے پر سونے سے بھولو کی طبیعت میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ شادی کا بالکل قائل نہیں تھا۔ اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ یہ جنجال کبھی نہیں پالے گا۔ جب گاما کبھی اس سے بیاہ کی بات چھیڑتا تو وہ کہا کرتا، نہ بھائی، میں اپنے نروئے پینڈے پر جونکے نہیں لگوانا چاہتا۔ لیکن جب گرمیاں آئیں اور اس نے اوپر کاٹ بچھا کر سونا شروع کیا تو 10-15 دن ہی میں اس کے خیالات بدل گئے۔ ایک شام کو دینے کے بٹیار خانے میں اس نے اپنے بھائی سے کہا، میری شادی کر دو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گاما نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، یہ کیا مذاق سوجا ہے تمہیں؟ بھولو بہت سنجیدہ ہو گیا، تمہیں معلوم نہیں 15 راتیں ہو گئیں مجھے جاگتے ہوئے۔ گاما نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں یار، دائیں بائیں جدھر نظر ڈالو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، نیند کیا آئے گی خاک؟ گاما زور سے اپنی گنی مونچھوں میں ہنسا۔ بھولو شرما گیا، وہ جو کلن ہے اس نے تو حد ہی کر دی، سالہ رات بھر بکواس کرتا رہتا ہے، اس کی بیوی سالی کی زبان بھی تالوں سی نہیں لگتی، بچے پڑے رو رہے ہیں مگر وہ۔ گاما حسب معمول نشے میں تھا۔ بھولو گیا تو اس نے دینے کے بٹیار خانے میں اپنے سب واقف کاروں کو خوب چہک چہک کر بتایا کہ اس کے بھائی کو آج کل نیند نہیں آتی۔ اس کا باعث جب اس نے اپنے محسوس انداز میں بیان کیا تو سننے والوں کے پیٹ میں ہنس ہنس کر بل پڑ گئے۔ جب یہ لوگ بھولو سے ملے تو اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کوئی اس سے پوچھتا، ہاں بھائی کلن اپنی بیوی سے کیا باتیں کرتا ہے؟ کوئی کہتا، میاں مفت میں مزے لیتے ہو، ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے ہو، 100% گالی بولتی۔ بعضوں نے گندے گندے مذاق کیے۔ بھولو چڑ گیا۔ گاما صوفی حالت میں تھا تو اس نے اس سے کہا، تم نے تو یار میرا مذاق بنا دیا ہے، دیکھو جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے یہ جھوٹ نہیں، میں انسان ہوں، خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آتی، آج 20 دن ہو گئے ہیں جاگتے ہوئے، تم میری شادی کا بندوبست کر دو ورنہ قسم پنجتن پاک کی میرا کھانا خراب ہو جائے گا۔ بابی کے پاس میرا 500 روپیہ جمع ہے، جلدی کر دو بندوبست۔ گاما نے مونچھ مروڑ کر پہلے کچھ سوچا پھر کہا، اچھا ہو جائے گا بندوبست، تمہاری بابی سے آج ہی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملنے والیوں سے پوچھ گچھ کرے۔ 1.5 مہینے کے اندر اندر بات پکی ہو گئی۔ سمت کلئی گر کی لڑکی عائشہ گاما کی بیوی کو بہت پسند آئی، خوبصورت تھی، گھر کا کام کاج جانتی تھی، ویسے سمت بھی شریف تھا، محلے والے اس کی عزت کرتے تھے، اور بھولو محنتی اور تندرست تھا۔ جون کے وسط میں شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔
समद ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहे गा, मगर बूलू ने जब जोर दिया तो वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले बूलू ने अपनी दुल्हन के लिए ऊपर कोटे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त किया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श में गाड़े, टाट खूब कसकर लगाया, चारपाइयों पर नई खेस बिछाए, नई सुराही मुंडेर पर रखी, शीशे का ग्लास बाजार से खरीदा। सब काम उसने बड़े एहतमाम से किए। रात को जब वो टाट के पर्दे में गिरकर सोया तो उसको अजीब सा लगा। वो खुली हवा में सोने का आदी था, मगर अब इसको आदत डालनी थी। यही वजह है कि शादी से 4 दिन पहले ही इसने यूं सोना शुरू कर दिया। पहली रात जब वो लेटा और इसने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने में तितर बितर हो गया। उसके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगी जो उससे सोने नहीं देती थी, और उसके दिमाग में तरह तरह के परेशान ख्यालात दौड़ आती थी। क्या वो भी ऐसी ही आवाजें पैदा करेगा? क्या आसपास के लोग ये आवाजें सुनेंगे? क्या वो भी इसी की मानिंद रातें जाग जाग कर काटेंगे? किसी ने अगर जाग कर देख लिया तो क्या होगा? बूलू पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। हर वक्त उसको यही बात सताती रहती कि टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है, फिर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हैं। रात की खामोशी में हल्की सी सरगोशी भी दूसरों के कानों तक पहुंच जाती है। लोग कैसे ये नंगी जिंदगी बसर करते हैं? एक कोटा है, उस चारपाई पर बीवी लेटी है, इस चारपाई पर खावंद पड़ा है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान आसपास खुले हैं। नजर ना आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है? सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी सारी चीजें बेनकाब कर देती है। वो सामने कल्लन अपनी बीवी की छातियां दबा रहा है। वो कोने में उसका भाई गामा लेटा है, तहबंद खोलकर एक तरफ पड़ा है। उधर ईदू हलवाई की कवारी बेटी शादा का पेट छिद्रे टाट से जांग जांग कर देख रहा है। शादी का दिन आया तो बूलू का जी चाहा कि वो कहीं भाग जाए, मगर कहाँ जाता? अब तो वो जकड़ा जा चुका था। गायब हो जाता तो समद जरूर खुदकुशी कर लेता। उसकी लड़की पर जाने क्या गुजरती। जो तूफान मचता वो अलग। अच्छा, जो होता है होने दो, मेरे साथी और भी तो हैं। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे भी। बूलू ने खुद को ढार्स दी और अपनी नई नवीली दुल्हन की डोली घर ले आया। क्वार्टरों में चहल पहल पैदा हो गई। लोगों ने बूलू और गामा को खूब मुबारकबादें दी। बूलू के जो खास दोस्त थे उन्होंने उसको छेड़ा और पहली रात के लिए कई कामयाब गुर बताए। बूलू खामोशी से सुनता रहा। उसकी भाभी ने ऊपर कोटे पर टाट के पर्दों के पीछे बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया। गामा ने 4 मोतिये के बड़े बड़े हार तकिए के पास रख दिए। एक दोस्त उसके लिए जलेबियों वाला दूध ले आया। देर तक वो नीचे क्वार्टरों में अपनी दुल्हन के पास बैठा रहा। वो बेचारी शर्म की मारी सर नेवड़ाए, घूंघट गाड़े सिमटे हुई बैठी थी। सख्त गर्मी थी। बूलू का नया कुर्ता उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा जल रहा था, मगर हवा जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई थी। बूलू ने पहले सोचा था कि वो ऊपर कोटे पर नहीं जाएगा, नीचे क्वार्टर ही में रात काटेगा, मगर जब गर्मी इंतहा को पहुंच गई तो वो उठा और दुल्हन से चलने को कहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम क्वार्टर खामोशी में लिपटे हुए थे। बूलू को इस बात की तस्कीन थी कि सब सो रहे होंगे, कोई उसको नहीं देखेगा। चुपचाप दबे कदमों से वो अपने टाट के पर्दे के पीछे अपने दुल्हन समेत दाखिल हो जाएगा और सुबह मुंह अंधेरे नीचे उतर जाएगा। जब वो कोटे पर पहुंचा तो बिल्कुल खामोशी थी। दुल्हन ने शर्माए हुए कदम उठाए तो पाजेब की नकरई घुंघरू बजने लगे। एकदम बूलू ने महसूस किया कि चारों तरफ जो नींद बिखरी हुई थी चौंक कर जाग पड़ी है। चारपाइयों पर लोग करवटें बदलने लगे। खांसने कंकारने की आवाजें इधर उधर उभरी। दबी दबी सरगोशियां इस तपी हुई फिजा में तैरने लगी। बूलू ने घबराकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से टाट के ओट में चला गया। दबी दबी हंसी की आवाजें उसकी कानों के साथ टकराईं। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। बीवी से बात की तो पास ही कुसर पुसर शुरू हो गई। दूर कोने में जहां कल्लन की जगह थी वहां चरपाई की चरचू चरचू होने लगी। ये धीमी पड़ी तो गामा की लोहे की चरपाई बोलने लगी। ईदू हलवाई की कवारी लड़की शादा ने 2-3 बार उठकर पानी पिया। गड़े के साथ उसका गिलास टकराता तो एक चन्नाका सा पैदा होता। खेरे कसाई की लड़की की चरपाई से बार बार माचिस जलाने की आवाज आती थी। बूलू अपनी दुल्हन से कोई बात ना कर सका। उसे डर था कि आसपास के खुले हुए कान फौरन उसकी बात निकल जाएंगे और सारी चरपाइयां चरचू चरचू करने लगेंगी। दम साधे वो खामोश लेटा रहा। कभी कभी सहमी हुई निगाह से अपनी बीवी की तरफ देख लेता जो कटड़ी से बनी दूसरी चारपाई पर लेटी थी।
कुछ देर जागती रही, फिर सो गई। भूलू ने चाहा कि वो भी सो जाए, मगर उसको नींद ना आई। थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उसके कानों में आवाजें आती थी, आवाजें जो फौरन तस्वीर बनकर उसके आंखों के सामने से गुजर जाती थी। उसके दिल में बड़े वलवले थे, बड़ा जोश था। जब इसने शादी का इरादा किया था तो वो तमाम लज्जतें जिनसे वो ना आशना था उसके दिलो दिमाग में चक्कर लगाती रहती थी। इसको गर्मी महसूस होती थी, बड़ी राहत बख्श गर्मी, मगर अब जैसे पहली रात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने रात में कई बार ये दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की, मगर आवाजें, वो तस्वीरें खींचने वाली आवाजें सब कुछ दरहम बरहम कर देती। वो खुद को नंगा महसूस करता, अलफ नंगा, जिसको चारों तरफ से लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब वो उठा। बाहर निकलकर उसने ठंडे पानी का एक गिलास पिया, कुछ सोचा। वो झिझक जो इसके दिल में बैठ गई थी उसको किसी कदर दूर किया। अब ठंडी हवा चल रही थी जो काफी तेज थी। भूलू की निगाहें कोने की तरफ मुड़ी। कल्लन का घिसा हुआ टाट हिल रहा था। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नंग दड़ंग लेटा था। भूलू को बड़ी घिन आई, साथ ही गुस्सा भी आया कि हवा ऐसे कोटों पर क्यों चलती है तो टाटों को क्यों चेटती है। इसकी जी में आई कि कोटे पर जितने टाट हैं सब नोच डाले और नंगा होके नाचने लगे। भूलू नीचे उतर गया। जब काम पर निकला तो कई दोस्त मिले। सबने उससे पहली रात की सरगुज़श्त पूछी। बूझे दर्जी ने उसको दूर ही से आवाज दी, क्यों उस्ताद भूलू, कैसे रहे? कहीं हमारे नाम पर पट्टा तो नहीं लगा दिया तुमने? छागे टीनसाज ने उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, देखो अगर कोई गड़बड़ है तो बता दो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा मेरे पास मौजूद है। बाले ने उसके कंधे पर जोर से दप्पा मारा। क्यों पहलवान, कैसा रहा दंगल? भूलू खामोश रहा। सुबह उसकी बीवी मैके चली गई। 5-6 रोज के बाद वापस आई तो भूलू को फिर उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोटे पर सोने वाले जैसे उसकी बीवी के आमद के मुंतजिर थे। चंद रातें खामोश रही थी, लेकिन जब वो ऊपर सोए तो वही कुसर पुसर, वही चरचू चरचू, वही कांसना खंखारना, वही गड़े के साथ गिलास के टकराने के छन्ना के, करवटों पर करवटें, दबी दबी हंसी। भूलू सारी रात अपनी चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। कभी कभी एक ठंडी आह भरकर अपनी दुल्हन को देख लेता और दिल में कुटता, मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है। 7 रातों तक यही होता रहा। आखिर तंग आकर भूलू ने अपनी दुल्हन को मैके बेच दिया। 20-25 दिन गुजर गए तो गामा ने भूलू से कहा, यार तुम बड़े अजीबो गरीब आदमी हो, नई शादी और बीवी को मैके बेच दिया। इतने दिन हो गए हैं उससे गए हुए, तुम अकेले सोते कैसे हो? भूलू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। गामा ने पूछा, ठीक क्या है? जो बात है बताओ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई आयशा? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है तो और क्या है? भूलू बात गोल कर गया। थोड़े ही दिनों के बाद उसके भाई ने फिर बात छेड़ी। भूलू उठकर क्वार्टर के बाहर चला गया। चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठ गया। अंदर से इसको अपनी भाभी की आवाज सुनाई थी। वो गामा से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि भूलू को आयशा पसंद नहीं, ये गलत है। गामा की आवाज आई, तो और क्या बात है? भूलू को इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं। दिलचस्पी क्यों हो, क्यों? गामा की बीवी का जवाब भूलू ना सुन सका, मगर इसके बावजूद इसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी हस्ती किसी ने हाउन में डालकर कूट दी है। एकदम गामा ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? गामा की बीवी बोली, आयशा ने अपनी किसी सहेली से जिक्र किया। बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंच गई। बड़ी सदमा ज़दा आवाज में गामा ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। भूलू के दिल में चुई सी पेवस्त हो गई। इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। उठा और कोटे पर चढ़कर जितने टाट लगे थे उकेड़ने शुरू कर दिए। खट खट पट पट सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की तो वो लड़ने लगा। बात बढ़ गई। कल्लन ने बांस उठाकर उसके सर पर दे मारा। भूलू चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका दिमाग चल चुका था। अब वो अलफ नंगा बाजारों में घूमता फिरता है। कहीं टाट लटका देखता है तो उसको उतार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है।